Hello. You're probably sick of my face. And Emma. They love you. I love you too. You know what? I haven't been in a good state of mind, you know. Please follow the road for 13 miles. No. Why? I thought you were gonna say Jorge. Huh? Me too. I don't know, I just feel weird. You feel weird. Why? I don't know. If you don't know, yeah, definitely you weird. That's rude. How are you feeling? Me? Always pleasant, good, Behind the Yes. scenes. Behind the scenes. fed up, annoyed, Angry. sad, Sad. But yeah, busy. you're busy. I'm always busy in something. You know, I was thinking, am I busy? And I thought I wasn't busy until I figured out, yeah, I am busy. I just think people who work a 9-to-5 job, they're the busy ones, innit? But it's not. No. Everyone's busy. Everyone has something to do. Yeah. Before I used to be really lazy, but now when I'm home, I try and keep things clean. Try I don't know anyway. how people can be lazy. I really don't know. It's an art. It's a talent. It is a talent. Ask my dad. Ask me. Ask Yeah. Mali. Actually, Malia's busy No, all the time. Malia is all the time busy. Malia's busy all the You time. just 100% like your dad, is it? Not anymore. I think the award go to Mr. Khan. Hidayatullah Khan, can you please come to the stage and thank all those people? You know what, Ma? I'm not really happy with my eyelashes this time because most of our You eyelashes know what? are. That's the most annoying thing in the world, eyelash. But you know I what? had it done. Even my one is not like you know, the Hollywood one and this and that. I just had a classic one, a very little one. Still, I just can't, but you can't wait to come off. You don't like all that stuff, innit? Like, you like it, but you can't handle it. I can't handle Yeah. fake thing. Can't. So, You know, let me tell you the eyelash story. Did I tell you that story, Nafia? yeah, the one when you had an accident. Yeah, Yeah, but I didn't share that with you did about 100 times. No, I didn't No, share. because someday you did. But you can say it again, it's fine. Okay then. तो चलिए eyelash का किस्सा सुनाती हूँ, फिर नाफिया इंग्लिश में सुनाएगी। eyelash लगा लेती थी जब कभी वेडिंग पे जाती थी या कभी हॉलिडे पे जाती थी। तो एक दफ़ा पाकिस्तान जा रही थी, ये 2019 की बात है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं चैरिटी की ट्रिप पे जा रही थी, लेकिन 1-2 वेडिंग्स भी थी, मेरी फैमिली में भी थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड में भी थी। तो मैंने eyelash लगा दिए, बिल्कुल इसी तरह, ज़्यादा नहीं। उससे पहले मेरे काफ़ी घने eyelash होते थे, तो मुझे eyelash लगाने की ज़रूरत भी कभी नहीं आई, क्योंकि मेरे खुद के eyelash इतने प्यारे हुआ करते थे। ज़रा सा मस्कारा लगाती थी तो यूँ हो जाते थे। मैंने लगा दिए। जब मैं गई, पाकिस्तान गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस मरने वाली हूँ, मुझे एग्जैक्टली यही लग रहा था कि कुछ देर में मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मेरा पेन नाकाबिल बर्दाश्त था। तो मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे eyelash लगे हुए हैं, और अगर मैं उस दुनिया में जाऊंगी तो मैं कोई फेक चीज़ नहीं लेके जाना चाहती। तो मैंने क्या किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और यूं करके पेन तो इतना ज़्यादा था कि उसका पेन मुझे महसूस ही नहीं हुआ, और मैंने वो सारे eyelash अपने eyelash के साथ ही तोड़ दिए। बाद में जब मैं यहाँ आई तो मेरे कोई eyelash थे ही नहीं, अपने भी नहीं थे, पराए भी नहीं थे। तो इसलिए मैंने 2019 के बाद eyelash लगाए ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने लगा लिए थे, और वो भी बिल्कुल क्लासिक, बहुत थोड़े से, क्योंकि उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ हो गई, और मेरे eyelash जो इतने प्यारे हुआ करते थे वो कभी उगे ही नहीं, बस क्योंकि मैंने उसको रूट से खींच लिया था। फिर सर्जरियों में पता नहीं क्या वो करते हैं, कुछ रखते हैं कि क्या, तो मेरे eyelash ख़त्म हो गए हैं। तो ये स्टोरी है eyelash की। So basically, Mum's saying that she had fake eyelashes with extension lashes on.
for 2019. when she was going for a charity trip and a few weddings. That was the year that she had an accident. Basically, when she had the accident, she was in so much pain, and she realized she had these eyelashes on, even though she knows that it's, you know, it's not attached to the roots. It's not attached to the roots. So, but she didn't want to. She thought she was going to die, and she was. She didn't want to go with like fake things with me. So she was preparing by pulling all of her eyelashes off. So she came back with no eyelashes. Yeah. Okay, so Mama, you've done this story now, okay? Yeah, So next time you do this story, just remember you've already done it. I don't know. Okay, comment that you know the story from. I done it on live, never on my YouTube. So you do have a good memory, so I don't know. Yeah, I done this story on my live. ये तीसरा ट्रिप है मेरा नाफिया के साथ. जब हम घर से निकलते हैं तो Starbucks की कॉफी नहीं मिलती. Yeah, and right at the end, actually towards the end as well, we never get it. Starbucks को चाहिए कि मुझे नॉमिनेट करे कि इतनी मैं इनकी इतनी कॉफी की तारीफ करती हूँ. Amanda, did you know that thing about what the government's going to do? Yeah. About the citizenship thing. ये मैंने ये सुना है कि अब अगर कोई क्राइम करेगा तो वो पुलिस या अदालत के हाथ में नहीं होगा. वो होगा ये जो क्या है हमारे यूके बॉर्डर वाले, ये इमिग्रेशन वाले, उनके हाथ में होगा. और वो हमसे अल्लाह ना करे कि हम कभी कोई क्राइम करें, पर उस बंदे से जो ब्रिटिश भी होगा उससे वो ले लेंगे, नेशनलिटी ले लेंगे और उसको कहेंगे दफा हो जाओ, अपने मुल्क चले जाओ. पर मैं इसको, ठीक है, मैं क्राइम के बहुत खिलाफ हूँ और क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए. लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि किसी को इंसान झूठे क्राइम में फंसा देता है. तो ये मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है. और जैसे कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि हमेशा हर बात में साथ देता है, उसने भी ये डिक्लाइन कर दिया है. ये हाँ, उसने भी कहा है कि सच Because this is the most racist thing that they can do, because it targets who? Ethnic minorities. Yes. Because who has a dual nationality? और किया किसने? कोई पटेल है. You know what? And they're saying the British citizenship is a privilege. It's a privilege. It's a right. I mean, if you're born हमारा here. पाकिस्तान इतना बेचारा गरीब मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में भी कितनी अकलियत मीन के कितने ये जो और इंटेलिजेंट और लोग हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, उनको नेशनलिटी दी हुई है. ये अफगानी हमारे अफगानिस्तान से जो बहन भाई हैं उनको भी नेशनलिटी. Preeti Patel. She's a goddamn brown lady herself. Of all people, she should be the one, you know. Imagine if but that's what they're using. They're using a brown lady to do this because to say, look, it's not about racism. Obviously, it's about racism. वही बात हुई ना कि अपने भाई के कंधे पे बंदूक रख के चलाना. तो वही हमने तो तुम्हारे भाई का कंधा यूज किया है, बस बात खत्म. I don't know, but you know what? I thought America was bad. And I was always proud of being here in Britain, but Britain has really, especially because of this Conservative Party, they've literally, like, they've made me not like being a British नहीं, लेकिन person. ये भी सोचा जाए ना कि यही ब्राउन लोग ही काम करते हैं, यही ब्राउन लोग ही, यही we जो give taxes, we लोग हैं, यही in every देते हैं. अब हमारे घर में देख लो, हमारे घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई काम करता है, हर एक टैक्स पेयर है. तो आप सोच लें, अगर आप देखें, मैं ये नहीं कि गोरों की मैं बुराई करती हूँ, पर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो इतना काम हार्ड वर्क नहीं करते जितने हम लोग करते हैं. इंडियन, पाकिस्तानी, अरबी, ये हम सारे लोग इतना काम करते हैं डे नाइट. And not only that, we will compromise our own quality of life. They will never do that. They will ये never कभी do that. क्रिसमस डे पे काम नहीं करते, न्यू ईयर डे पे काम नहीं करते. हम वाहिद ऐसी कौम है कि हम ईद के दिन भी काम करते हैं. लास्ट ईद पे मैं नाफिया के साथ अपसेट थी
क्योंकि ये ईद पे काम कर रही थी। इकबाल हमेशा you know there's a registrar with me, and another registrar was going to work on Christmas. She's like, why are you doing that? You could easily swap it with say an Indian or a Muslim or whoever it is, because they don't celebrate Eid, and you could, I mean, they don't celebrate Christmas. You can easily swap it with them. And then I thought, hold on, we've never had you have never swapped it with us when we say, can we have some days off for Eid? Never, ever. They're like, because they don't care. You know why? Because they're in power, they're the majority, and that's what it is. And the sad thing is that countries like Pakistan, they value minorities more than people here. वो बेचारा गरीब मुल्क है, गरीब। इवन इंडिया भी करते हैं, इंडिया के लोग भी देते हैं, वो भी गरीब मुल्क है, लेकिन वो भी देता है लोगों को। बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क है, वो देता है। तो ये तो इतना, ये अपने आप को इतना वेटो पावर किस्म का और अमीर मुल्क समझते हैं, और अपने उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जो लोग यानी कि यूके के लिए जान देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यूके के साथ और पाकिस्तान दोनों के साथ equally faithful हो। तो ये तो हमारे साथ The problem is that what these lot don't understand is that these rules are still not going to be a deterrent for those people who are doing terror. Yeah. People who want to do terror, they don't give a shit about your British citizenship. They will still bomb and cause terror. They don't care. Literally, you got to understand, these people don't have a religion. They're extremists. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो खराब लोग होते हैं, मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहती, जो खराब लोग होते हैं, जो बगैर किसी वजह के सिविलियन को मारते हैं और गंदगी फैलाते हैं ना, उनका कोई मजहब नहीं है। उनका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि ना इस्लाम में ये है कि आ जाओ और लोगों को कत्ल कर दो, ना हिंदुइज्म में ये है, ना क्रिश्चियनिटी में ये है, किसी मजहब में भी ये नहीं है कि जी उठो और अपने मजहब के नाम पे कत्ल गारत शुरू कर दो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो अगर ये कहते हैं कि इस तरीके से हम ये टेररिज्म को स्टॉप कर देंगे, नो, वो तो गंदे लोग हैं। It's probably going to get worse. It's probably going to get worse. They are dirty people. They will do it. You know what? At least now they can say, look, if we do something wrong, the Muslims are going to stand up. Yeah. They're going to stand up and say this is wrong. Yeah. But now, if you get the Muslims out, I'm just saying Muslims because I am a Muslim, and I can only speak from, you know, for that minority. And I feel like if we go out, you know, this whole thing, Britain says we should integrate. They're isolating us. Yeah. They're literally making us separate. Yeah. If you're going to make us separate, how the hell are we going to integrate? क्योंकि हमें नेशनलिटी मिली है, हम इसको अपना राइट समझते हैं कि हमें मिली है, हम इस मुल्क के साथ फेथफुल है। This is our right because we are faithful to this country. We call ourselves British. And अगर British होना privilege है, हमारा right नहीं है, so that's it. End That's of story. an awful thing to say. And we're going to be scared all our life that any time they can take our nationality and kick us out. That tells you the mentality of a few people in Britain, that they think a passport is a goddamn privilege. For the love of God, that is just disgusting. You know. मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, वो यहाँ पे। I wonder what Shaheen thinks of this. Please turn off to the Maybe she left after thinks 3/4 of a mile and मेरी then follow the way बांग्लादेशी फ्रेंड है, शहनाज उसका हस्बैंड है। वो यहाँ पे स्टूडेंट करके आया था और अब माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ज़ैयद फादर। आज तक उसने ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया। वो कहते हैं I'm not reading. You know, a few years ago, there was this girl, I forgot who it was. Basically, I was having an argument with someone because I came back from Pakistan and she was going on and on about Britain. She was Pakistani, on and on about Britain this, you Pakis this, you Pakis this. She was Pakistani. Yeah, and I was like, you know what, girl? There's going to be a point where this Britain is going to chuck you out of the country, despite you being born in here. I've told so many people that there's going to be a time. मैं 15 ईयर की थी और ब्रिटेन ने 16 ईयर की थी मेरे ख्याल में, और ब्रिटेन ने, क्योंकि नाफिया 2 वीक ओल्ड थी, और ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया था कि रातों रात सारी लिबियन निकल जाए इस कंट्री से। Yes, that happened. All Libyan.
born here or not? बस मेरी अब आप लोग चेक करो, नाफिया भी चेक कर लेंगी, लेकिन मुझे याद है कि हमारे लिबियन टेनेंट बाबा के बहुत ज्यादा घर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, और उन घरों में सारे लिबियन स्टूडेंट थे। और मुझे यहाँ तक याद है कि बाबा उनके लिए दुआ करता था कि अल्लाह इन पे रहम करे, क्योंकि अब ये अपना सब कुछ, इनको नोटिस मिला है, ये अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे। नाउ अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज, क्योंकि मेरी बस एक मेमोरी है इन लिबियन के बारे में कि ये ऐसे हुआ था। तब मैं छोटी थी और मैंने ये महसूस कर लिया था कि अच्छा, तो इस मुल्क में कोई भी सेफ नहीं है, कभी भी ये किसी को भी निकाल सकते हैं। Well, if you're not white, if you're not white, unfortunately, if you're not a white person who's born in Britain, then you're at risk in Britain. Like, not even America would do something like this. No, अमेरिका ने ये कहा है कि ये गलत है। अमेरिका ने इसको गलत कहा हुआ है। मुझे मलीहा ने सारा पढ़ के सुना दिया, क्योंकि मुझे डिसलेक्सी है, मैं ये आर्टिकल वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी। मुझे किसी ने, you know what, that's why I'm upset. Yesterday, you know, I knew about this, but then I didn't take too much mind to it. But now people are starting to get worried. नहीं, मुझे तो किसी ने टिकटॉक का एक वीडियो भेज दिया कि वो कोई पाकिस्तानी है, तो उसने कहा कि मामा आपको पता है कि ये हो रहा है। मैंने कहा मैं कभी न्यूज़ ही नहीं देखती हूँ, कभी कुछ ऐसे देखती नहीं। मैं कहती हूँ मुझे नहीं सुनना कि दुनिया में क्या नेगेटिविटी हो रही है, तो मैं देखती नहीं। बस डियाना के आखिरी न्यूज़ थे, डियाना की न्यूज़ के बाद मैं कोई न्यूज़ देखती नहीं हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ। Man, look at that, man. We're Asians, and we're talking about Diana. Yeah, like so you know, Diana जब फोर्थ हुई थी, my mom cried for a whole week. couple of months में upset थी। वीक में तो क्राई कर रही थी। couple of months मैं अपसेट थी कि मैं कहती थी कितनी प्यारी लड़की है, इतनी चैरिटी करने वाली। और उन दिनों मेरी एज भी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन मैं इतनी रो रही थी जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं रोई थी और मैं न्यूज़ के आगे बैठी होती थी। तो उसके बाद मैंने न्यूज़ देखना बहुत कम कर दिया है, मैं नहीं देखती हूँ। मैं कहती हूँ न्यूज़ में क्या होता है, बस दुख ही दुख होता है। लेकिन ये जब मुझे किसी ने टिकटॉक का ये भेज दिया, तो मैंने मलीहा को कहा, मैंने कहा मलीहा किसी ने ये मुझे भेजा, ये सच है? तो मलीहा ने जल्दी से पढ़ लिया सारा जो पूरा आर्टिकल था गूगल में। उसने कहा मामा दिस इज वेरी रॉन्ग। और मलिया को तो बिल्कुल जैसे ना रोने वाली हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मामा ये कहते हैं कि ये प्रिविलेज नहीं है, ये राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। तुम लोगों पे एहसान है कि हमने तुम लोगों को ये Who said that? I don't know. This is in the article. और फिर किसी ने फिर ये कहा है कि तुम लोग अगर कोई क्राइम करते हो तो बगैर किसी चीज के हमें पूरा राइट है कि हम तुम्हें नेशनलिटी लेके तुम्हें धक्का दे के निकल जाओ। अब हमारे जैसे लोग जिनके पास सिर्फ ब्रिटिश नेशनलिटी है, जो कि पाकिस्तान वीजा लेके जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ना हमें पाकिस्तान छोड़ेगा, ना हमें ये छोड़ेंगे। ये क्योंकि बहुत पाकिस्तानी है जो कि ड्यूल नेशनलिटी नहीं रखते, वो सिर्फ बहुत इंडियन भी हैं जो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रखते। वो दे ओनली कॉल देमसेल्फ ब्रिटिश, क्योंकि वी आर फेथफुल टू ब्रिटेन। सो उन लोगों के साथ क्या होगा? अगर एक हम जैसे लोगों के पास जिनके पास एक नेशनलिटी हो, तो वो किस मुल्क में जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। And you know what's so sad is during the COVID times, why would the government bring out something so racist when most of the people that have died in the NHS has been from the black and Asian community? Yeah. For the love of God, most doctors, most nurses have been the black and Asian community. You're going to use their lives, but then call it a privilege for giving them a passport. You know what? The government should be absolutely ashamed of themselves, honestly. It's ridiculous. But they can't get away with it. They can't. There's so many intermarriage relationships. There's so many white women with that's what I mean. क्योंकि यही तो मैं कहती हूँ, क्या मेरे घर में देख लो। Do you think they're going to मेरी छोटी बहू की हाफ जो लोग हैं वो गोरे हैं और हाफ जो है वो यमनी है। मेरी बड़ी बहू के हाफ इजिप्शियन है, हाफ गोरे हैं। इसी तरह मेरे मलीहा के देख लें, मलीहा के इन लॉज गोरे हैं और दूसरे मुल्क के हैं। तो मुझे आप ये बताएं
कि ये होगा कैसे, कैसे सेपरेट करेंगे एक बंदे को। ये तो वो बात हुआ ना, पुराने जमाने में कोई क्राइम करता था तो उसको पानी क्या काला पानी के पानीपत वहां भेज देते थे। तो ये तो वही बात हुई। तो ये पुराना जमाना, यानी कि मैं हमेशा इस पे प्राउड फील करती थी। And most of the highly skilled jobs are Asian owned. Yeah. I mean Asian placed. That's where they are. What are they going to do? तो मैं Do they really think people are going to stay quiet? यकीन करें, हमारा इधर हीथ हॉस्पिटल है, उसमें आप जाए ना, उसको आपको गोरों की शक्ल कम और अपनों की शक्ल ज्यादा दिख, क्योंकि सारे डॉक्टर इंडियन है। मैंने हीथ हॉस्पिटल में देखा है, सारे डॉक्टर इंडियन है। ओके, अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर क्राइम नहीं करेंगे, पर क्राइम तो कोई भी कर सकता है। No, anyone can do it. फरिश्तों से भी हो जाते हैं। And let me tell you another thing as well, Aman. The citizens of this, the white citizens of this country, they don't have a problem with brown people or black people. No, they don't have a problem. So why the hell does the government have a problem? My best friends are English people. Lisa can give her life for me. You know Nafia? Yeah. You know what? Who support my charity? My English friend a lot. My English friend is the government. My charity. You know what? We're all living in one community, all of us. But it's the government that's causing this shit. ये वही बात हुई। इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे को नफरत नहीं करते। No, they don't. गवर्नमेंट ने नफरत डाल दी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट, वो अपना उल्लू सीधा करती है, हम दोनों को लड़ा देती है। इसी तरह ये हेट अब बढ़ जाएगा। ये हेट अब जो इमिग्रेंट है, अब तो हमारा नाम इमिग्रेंट हो गया ना। जो इमिग्रेंट है, हम अपने आप को ब्रिटिश समझते थे, पर हम ब्रिटिश नहीं है, हम इमिग्रेंट है। तो जो इमिग्रेंट है और जो ब्रिटिश है, अब इनके अंदर ये बिल्डअप हो जाएगा ये हेट, क्योंकि जो इमिग्रेंट है वो यही सोचेंगे ना कि हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, हमने इस मुल्क को अपनी लाइफ दे दी है। Like parents chucking out one of the kids out of the house. Yeah. And saying you're disowned or whatever it is, and for no reason at all. No. तो ये मेरे ख्याल में तो ये बहुत गलत बात है। मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को भी गलत लगे, क्योंकि गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना करे। मेरा बाप भी गलत करेगा तो मैं कहूँगी ये गलत है, क्योंकि गलत होता है। चाहे इसमें किसी और के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लेबियन को निकाला गया, नाफिया सर्च कर लेगी तो आपको पूरा बता देंगे हम, लेकिन ये मेरी बहुत ही छोटी सी एक मेमोरी है कि रातों रात लिबियन को कह दिया कि निकल जाओ, सारे यहाँ से निकल जाओ। तो वो अभी तक मेरे दिल को ना, वो पेनफुल है मेरे दिल के अंदर कि ये ऐसे उन बेचारों के साथ हुआ। इवन दो कि उन्होंने गलत किया हो या बुरा किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को ये टाइम ना देना। उसमें काफी अच्छे लोग भी होंगे ना, काफी वो लोग भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, तो एकदम से लेबियन को कहना कि निकल जाओ। इसी तरह अगर हमें कोई कहे कि तुम ब्रिटिश हो, ये हमारा एहसान है तुम पे, तुम्हारा राइट नहीं है। This is all things that aggravate people, and that's not how things are supposed to be. I don't know कि ये बिल पास हो गया कि नहीं, अभी हो रहा है, ये हो गया, पास हो गया। I think it has. I think it has. So nobody would even know that take away the passports away from them. They will not have an explanation. They will not appeal. They will not have the right to appeal. अपील नहीं कर सकते हैं, explanation कोई उनको नहीं देगा, बस उनको कह दिया कि तुम गलत हो निकल जाओ। ऐसा कानून तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। It's barbaric. It's barbaric. दुनिया के हर हिस्से में मुजरिम को कहा जाता है कि तुम प्रूफ करो कि तुम innocent हो। And guys, if you are watching this, share this video, because we cannot let this happen. It's racism. It's pure racism. It's nothing to do with anti-terrorism, because those terrorists, they don't need a passport. They will come and they will do what they want to do. 25 वो तो गंदे लोग होते हैं, गंदे काम करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान की मस्जिद में जुम्मे की नमाज में लोगों को उड़ा देता है, तो आपको क्या लगता है उसका कोई मजहब है? जो कि इंडिया के ट्रेन स्टेशन में किसी को उड़ा देते हैं, बेगुनाह लोगों को, तो आपको लगता है उसका कोई मजहब है? नहीं, इन लोगों की कोई मजहब नहीं। या लंदन के ट्रेन स्टेशन में बेकसूर लोगों को उड़ा देते हैं, तो ये कोई मजहब है? नहीं, उनका कोई मजहब नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। उनका वो तो जो भी पहचान चाहे जिनों की तरह अपनी पहचान बना लेते हैं। They are very powerful people. They can do whatever they want to do.
उनके साथ लड़ना है तो हमें एक साथ होके लड़ना है। अगर टेररिस्ट के साथ हम लड़ाई करनी है तो हमने इक्वल होना है, पार्ट में नहीं होना है, हमने इक्वल होके सारी दुनिया को इक्वल होना है और लड़ना है इस गंदी चीज के खिलाफ। I still don't know the point of this. Like, if you think, I don't know what is the insides, the details of it. Like, what kind of crime would they have to do? ये भी नहीं explain किया ना कि कैसा crime? Yeah, like what is it? If somebody said that this kind of person, like say the ethnic minority with this thing, right? They will have less rights than somebody who has did a traffic violation. Think about it, because you do a traffic violation, not much happens or whatever it is. It's going to be that common, as common as a traffic violation. So you could do nothing. Maybe speeding. Yeah. So it's an equivalent to that, and that's it. You're done. You're done. God. That's how bad it's going to get. यही तो मैं मलिया से पूछ रही थी कि crime का क्या is. They haven't said it, but they've given this equivalency. Okay. There's going to be that bad and that common that even if you do a traffic violation. Okay, so they give the ishara. Yeah. Allah. Yeah. Okay, I don't know. Yeah. I thought it's maybe like drugs or maybe like this kind of thing. No, it's said in this article that it is gonna be things like, even if it's a traffic violation, you could be at risk. Oh my God. अच्छा, मैं तो सबसे पहले अपने टांग को जरा वैसे मैं तो हमेशा से चाहती हूँ we'd be on the next boat. मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ पे रहूँ। मेरे बच्चे मुझे नहीं छोड़ते, नहीं तो मेरी तो ख्वाहिश है मैं फिर भी यूके के साथ फेथफुल रहूंगी, क्योंकि मुझे यूके ने बहुत कुछ दिया है। और ठीक है, ये कहते हैं कि प्रिविलेज है, ये हमारे ऊपर एहसान है, तो इसको एहसान समझ के ही मैं यूके के साथ हमेशा फेथफुल रहूंगी और इसके यूके का हमेशा अच्छा ही मांगूंगी कि इस मुल्क के साथ हमेशा अच्छा हो, हमारे पाकिस्तान और बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ साथ। लेकिन ये एक मेरी ख्वाहिश है, और अब तो जब से मैंने ये सुना है मेरी ख्वाहिश और भी बढ़ गई है कि मैं पाकिस्तान जाके सेटल हो जाऊं। एटलीस्ट मेरे पास एक आइडेंटिटी होगी ना, exactly, कि मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। अभी तो ना मैं पाकिस्तानी हूँ ना मैं exactly. Is that thing like being you can't say I'm British anymore. Like if you're brown, if you're Asian, if you're any of the ethnic minority and you've been born here, you can't say you're British because that can be taken away from you like that. पर चलो कुछ लोगों को सबक भी मिल जाएगा ना, जो हमारे No, that's the point. They think सबक मिल जाएगा. There's no way to सबक मिल जाएगा. उन लोगों को सबक मिल जाएगा ना, जैसे कि मैंने एयरपोर्टों पे देखा है जिनके पास ब्रिटिश वो होते, वो लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तानियों को क्या पता। मैंने अक्सर देखा है आर्ग्यूमेंट ऑफिसर के साथ कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता, हमारे यूके में ये होता है, हमारे यूके में, और वो अपने ब्रिटिश होने का रोप जमाते हैं ना। But you know what, ma? अब ये थोड़ा कम हो जाएगा। Those times are gone. Pakistani are so far up their own bum now, right? That they don't give two gaya. But the thing is, in those kind of areas like airports and that, they think that they're better. Like there's Elan, the designer. I think her name's Khadija or something. So basically, look at this. Pakistan is saying that I want to give. दोनों तरफ से जूते पड़ रहे हैं. No. दोनों तरफ से. No. The government of Pakistan is very nice to us. They're saying that in the next election, we are gonna give the overseas Pakistani a right to vote. लेकिन पाकिस्तानी कौम तो नहीं दे रही है ना. I'm one person is the elitist, the elite people. And you know why? Because they think the British people think that they're so better than them. Maybe that's why she said it. So she said, Elan, Khadija or whatever, the Elan's basically designer. She's Elan. So she put out a tweet saying that so basically she said, Khadija Shah, she said the only problem is there is no human species more idiotic than overseas Pakistani. Oh God, Khadija, you're such a cow. किस को काव कहेंगे?
तो इसको किसी ने भी नहीं कहा कि ऐसा क्यों बोला है? Yeah, people were ragging her, and basically she deleted the tweet. She deleted. Yeah, she deleted it. Good. तो वो खाते क्यों हो कि फिर बाद में सफाई करते हो? I mean, I can understand the thing that she's basically probably saying, like, you know, they think British people or whatever overseas Pakistanis think that they're better than us. Maybe और आपको that's एक why बात she said बताऊं, it. ईलान के कपड़े सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग लेते हैं। Yeah. तो मेरे ख्याल में ब्रिटिश पाकिस्तानी है या ब्रिटिश इंडियन है, वो तो अब ईलान का कोई सूट नहीं लेंगे, इतना मुझे पता है। Right. I feel like क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल किस्म के लोग हैं, हमें एक दफा पता चल जाए कि क्योंकि हम अपने मुल्कों से प्यार भी बहुत करते हैं, अपने मुल्कों के लिए जान भी बहुत देते हैं और अपने लिए खड़ा भी बहुत होते हैं। तो अब तो मुझे ये यकीन है कि ईलान वालों का कोई सूट कोई भी यहाँ का ब्रिटिश एशियन पर्सन नहीं लेगा, इतना मुझे पता है। तो बिजनेस लोगों को ये बातें करते हुए थोड़ा ख्याल करना चाहिए। But you are right. You know what? You know when I went to med school, I felt this way. Like I felt like you're not accepted here, you're not accepted there. You'll get chaper from that side and chapera from this side. It's like you can't have. You're not gonna fit in anywhere. फिर मेरा अब्बू सही था, मेरे अब्बू अम्मी ने कितना टाइम गुजारा अमेरिका में, मेरे सारे बहन भाई भतीजे सब अमेरिकन नेशनल है, मेरे अम्मी अब्बू ने नहीं लिया। मेरे अब्बू कहते थे मैं तो कभी भी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये हम जैसे बेवकूफ है जिन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट को। अब कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न गाट का, कि क्या पता नहीं कुछ ऐसा कुछ है, न घर का न गाट का। हमारी वो मिसाल है, हमें ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करती है, कहती है वीजा लेके आओ, और या फिर वो जो कार्ड है वो ओवरसी कार्ड बनाओ। फिर भी ओवरसी कार्ड वाले होल्डर हमें कहते हैं ना, और ना हमें यहाँ के ब्रिटिश, हमें बहुत प्राउड था कि चलो ब्रिटेन हमारा मुल्क है, यूके हमारा मुल्क है, पर नहीं, हम ट्रैफिक का क्राइम भी करेंगे तो निकाले जाएंगे। वो रबिश इज दैट। मैं तो सोच रही थी कोई बड़े बड़े क्राइम करेगा, that's what they're saying. तो रोजाना हो सकता है, that's what they're saying. कोई भी कर सकता है, क्योंकि अक्सर हमारा मेंटल स्टेट, and us as a family, we're always involved with traffic, either speeding, well, just by a few, it's like 35, maybe 40 or something. या 3 से ज्यादा। Ours is mainly parking tickets. और पार्किंग टिकट होता है, और तो खैर कोई क्राइम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है जैसे कि मैं नो एंट्री पे एक दफा मैं नो एंट्री पे चली गई थी। तो हो जाता है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। इसको मैं क्राइम नहीं करती हूँ, इसको मैं गलती कहती हूँ। क्राइम वो होता है कि तुम जानबूझ के कहीं पे कोई धोखा कर लो, उसको क्राइम कहते हैं। इन चीजों को गलतियां कहते हैं, जो रोजमर्रा की गलतियां होती है, और उनके लिए हम फाइन देते हैं। एंड दैट्स सपोज्ड टू बी लाइक दैट, कि गलती के लिए फाइन दो, क्राइम के लिए सजा पाओ। But this, you know what, I don't know what it is. Basically, I know what it is. It's that whole Brexit thing, innit? But now on a really crazy level. That they can't say, listen, all brown people won't want you out of the country. We got the Europeans out, but how are we going to get you lot out? So this is what it is. So this, अब जो कोई भी जरा सा कुछ करेगा टप बाहर, और जाहिर बात है एक बंदा जब बाहर जाएगा उसकी पूरी फैमिली साथ जाएगी। फैमिली तो फिर छोड़ती नहीं। अब अगर एक खावन जाएगा तो बीवी और बच्चे भी साथ जाएंगे। That's what they want. अगर कोई बच्चा जाएगा मुल्क से बाहर तो माँ बाप भी जाएंगे। That's what they want. क्योंकि हमारी एशियन तो एक दूसरे पे जान देते हैं। It's not even about Asian. Every family would do that. वो हमारे, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अब अगर गोरों के साथ हो गया तो गोरे कह देंगे चलो एक को पनिशमेंट मिला है, चलो हम क्या जाएं। पर हमारे जो अरब हैं, हम हैं, बंगाली हैं, इंडियन है, जो भी हैं, हम लोग तो एक घर का एक बंदा सफर होता है तो हम पूरे के पूरे सफर होते हैं। You know what? I've got a dinner with my colleagues on Thursday. Inshallah, I'm going to ask them how they feel about it. Follow the 40th. चलो, अपना मूड खराब नहीं करते। चलो, इसको तो एक अलग से व्लॉग बना के पोस्ट कर दूंगी, और इसके बाद What are you going to say? I'm being kicked out of Britain. Yeah. Kicked out of Britain. फिर जिस मुल्क में हम जाएंगे वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी? वो भी कहेंगे अरे तू तो ब्रिटिश का निकाला हुआ है, खोतिया। तो जाहिर बात है वहाँ भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो
एक टापा लग जाता है ना कि ये निकाला हुआ है। I wish, inshallah, like I want Britain to stay prosperous as well, but I wish Pakistan gets so good, so powerful, all the गरीब मुल्क, सारे गरीब yeah, okay, but I'm मुल्क। Pakistani, so I'm going to pray for Pakistan. Yeah. I think I really, because all my life, that's your dua, but my dua is Pakistan. You know why? Because all my life I've been told being a Pakistani is embarrassing, is being a failure, is being all the bad things is connected to being a Pakistani. Everything. You're a Pakistani? Oh, you're shit. I hope the Pakistan, Allah puts Pakistan on such a level that the whole world says Pakistan, and when they say Pakistan, they're like, "Wah, Pakistan." जैसे कि Inshallah. जैसे लोगों की ख्वाहिश होती है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, And that they want a Pakistani passport. ये मैं हमेशा ये कहती हूँ, I wish कि लोग, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे रबिश की तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हैं ना, कहते हैं ये ग्रीन पासपोर्ट है। तो मैं हमेशा से ये चाहती हूँ, मैं दुआ हमेशा सारे मुल्कों के लिए करती हूँ। मुझ में ये एक बात है कि मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, लेकिन एज अ पाकिस्तानी के पाकिस्तान में मैं पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान मेरे माँ बाप का मुल्क है, मेरा मुल्क है, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ, या अल्लाह पाकिस्तान को इतनी ताकत और इतनी दौलत दे दो, इन कर्जों से निकाल दो कि लोग फख्र से पाकिस्तान का पासपोर्ट लेने पे फख्र महसूस करें, और जो लोग जो डॉक्टर और इंजीनियर जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर मुल्कों में काम करते हैं, वो वापस पाकिस्तान जाए और कहे कि हम तो पाकिस्तान में काम करेंगे, हमें यहाँ क्वालिटी लाइफ मिल रही है। तो ये दिन अल्लाह ताला करे, क्योंकि पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपनी जगह छोड़ दी, वो ला इलाहा को छोड़ के हसद करने लगे, कीना करने लगे, धोखे करने लगे, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां से गिरा दिया इनको। नहीं तो पाकिस्तान तो बना ही ला इलाहा के ऊपर था, तो पाकिस्तान पता नहीं दुनिया के कहां किस कोने में चला जाता, लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग पैसे को पूजने लगे हैं और इंसान की और इस्लाम की उन्होंने वो कदर नहीं की है ना, इसलिए वो उस जगह से अल्लाह ताला ने उनको गिरा दिया। तो वो हर एक बंदा कहते हैं पाकिस्तानी हो तो And you know what? The poor. If Pakistan starts worrying about the poor of their country, Pakistan will reach the top. No. Britain thinks about their poor people. You know, they try and get that equality. If Pakistan treats everyone on the same level, inshallah they'll get somewhere. यही मैं पहले हमेशा अपने बिजनेसेस से इस्लामिक रिलीफ और इन बड़ी बड़ी चैरिटियों को, पेनी अपील और इनको मैं अपने बिजनेस से सपोर्ट करती थी। मैं प्रॉपर जाके पूरे अपनी तरफ से स्टॉल्स लगाती थी और Oh God, our police, they could easily take our British passport. अब तो नहीं, पुलिस नहीं लेगी ना, इमिग्रेशन वाली। Yeah, but they could tell the immigration people. ये पकड़ेगी, ये जाके इमिग्रेशन वालों को देगी, होम ऑफिस वालों को देगी, होम ऑफिस वाले कहेंगे इसने स्पीड किया निकाल। It's so funny, it's really funny। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो मैं इन सब चैरिटियों को सपोर्ट करती थी। मेरे अब्बू ने एक दिन मुझे कहा और मेरे फादर इन लॉ ने, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इनको सपोर्ट करती हो, ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? मैंने कहा ये सारे वॉर जोन में जाते हैं, सीरिया, लेबनान और यहाँ फ़लस्तीन और इन जगहों में ये हेल्प करते हैं। तो मेरे अब्बू की एक बात और मेरे फादर इन लॉ की एक बात मुझे बहुत याद है। उन्होंने कहा वहाँ क्यों हेल्प करती हूँ जहाँ ऑलरेडी 1000 हेल्प कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं हेल्प करती हूँ जहाँ एक भी हेल्प नहीं है? मैंने कहा कहते पाकिस्तान में हेल्प करो, और पाकिस्तान में KPK में हेल्प करो। KPK हमारे पुश्तूनों का इलाका है, तो बहुत कम यहाँ हेल्प जाती है, क्योंकि हमारे बारे में मशहूर है कि हम क्रेजी लोग हैं। तो कोई भी पुश्तूनों को इतना वो पसंद भी नहीं करता मेरे ख्याल में, या पसंद करे या ना करे, लेकिन इनके इलाकों में जाने से डरते हैं। Because they're tough, innit? They never ask for help. Yeah. You know. तो मैंने अपने अब्बू को और अपने फादर इन लॉ को ये प्रॉमिस दिया था उनके डेथ बेड पे कि मैं KPK के लिए कुछ करूंगी, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूंगी, और मैंने उनकी वजह से ये अपनी चैरिटी शुरू की, और मैं इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान में करती हूँ। वजह ये है कि मुझे ये है कि बाकी, हालांकि मेरा दिमाग ये बना था कि ये सीरिया वालों को हेल्प करो और यमन को हेल्प करो, ये मेरा दिमाग ये बना था, इराक में हेल्प करो,
लेकिन मेरा दिमाग उस दिन से इस तरफ हो गया कि बाकी वहाँ तो 1000 लोग हेल्प करने जाते हैं, यहाँ भी हेल्प करना चाहिए जहाँ कोई नहीं जाता। So, बस ये बातें होती रहेंगी। चले इरादा तो ये था कि हम बहुत बड़ा फनी सा व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आप लोग भी तंग आ गए होंगे कि हर वक्त कोई ना कोई इशू होगा। we talk about funny stuff, तो लोग फनी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में इतना कुछ। Yeah, you know what, I agree with you as well, Amma. Like, the thing is, you know, when I watch somebody talking about issues, like, I like it, but when my mental health isn't good and I'm down and depressed, I want to watch something that's fun, you know, fun. तो and लोग all that. फन को ज्यादा पसंद करते हैं। ये ऐसी टॉपिक्स को लोग कहते हैं फगेले, और ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। तो मैं यही सोची थी आज मैं अपने बचपन के किस्से सुनाऊंगी, फनी स्टोरियां आपके साथ शेयर करूंगी जब तक लेस्टर पहुंचेगी। वो नहीं हुआ ना। Sorry. मेरी दुखती रग पे You know what? It's just because it happened. I saw the message yesterday, and I've been upset about it, but I haven't realized what is it that I'm upset about, and I've just realized now that it's this. I thought it was about me going on social media a bit too much, but then I just realized no, it's not that. It's that. Yeah. It's that. It's because living and being brought up here, it doesn't matter if I'm British or not. They're going to take my British license away from me. No, the thing is, क्योंकि हम मेरे ख्याल में हम ब्रिटिश से प्यार ही इतना करते हैं, हम इसको अपना मुल्क समझते हैं, और अपने मुल्क से निकाला जाना मेरे ख्याल में मौत के बराबर है। मेरे ख्याल में ये है, ये नहीं है कि हमें यहाँ की लग्जरी लाइफ है तो ये है वो इंसान किसी भी मुल्क जाके लग्जरी लाइफ, मेहनत करो लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। लेकिन अगर लग्जरी लाइफ ही है तो वो हमारी पाकिस्तान में ज्यादा लग्जरी लाइफ है, क्योंकि हमारे लैंड्स होते हैं हमारे। The other day when I was basically talking to Dad, and he was like, I was like, Mama's a bit fed up. She's just like, you know, I'm alone here. I'm gonna just go to Pakistan. And then he was like, he went quiet, and he was like, you know what, Nafia, that's probably the best decision ever, because there's only luxury here. तो बस पाकिस्तान का नाम लो तो दिमाग में आते है कि लग्जरी है। यहाँ तक कि पेट्रोल भी तुम खुद नहीं डालते हो, दूसरा बंदा तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालता है, तो लग्जरी लग्जरी। तो and for us, sorry, I keep cutting you off. It's okay, no. So for us, like, my mum's not a big fan of all these people doing things for you and all that. She does everything herself. Me, same as well. But there's just one thing. You don't have to worry whether you've got a parking ticket, whether the government's doing this, about HMRC, working like a dog and not getting hardly any money, any quality of life. Those are the things that we think that is luxury, and that's available in Pakistan. यहाँ तुम 100 कमाते हो तो 60 देते हो वापस गवर्नमेंट को, ये बिल ये and then in the end they say we've got a privilege, and 40 जेब में रखते हो। पाकिस्तान में तुम 100 कमाते हो तो मेरे ख्याल में 10 तुम देते हो इधर उधर और 90 जेब में रखते हो। तो बेहतर मुल्क कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया ना। और उसके टॉप पे लोग तुम्हें इज्जत देते हैं। यहाँ पे मेरे बिजनेसेस में देख लो, मैं अपनी एम्प्लॉय की ऐसे करती हूँ कि कहीं ये जॉब छोड़ के न चला जाए। मैं उनके नीचे हाथ रखती हूँ, उनके पिच करती हूँ। वहाँ पाकिस्तान में इंसान अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। वो कहते हैं कि मैं बॉस हूँ। यहाँ तो बॉस की मेरे अब्बू यहाँ पे आए थे तो मेरे साथ सिर्फ 2 वीक रहे, तो मेरे चाचा ने वहाँ पे उससे पूछा कि सबिया कैसी थी, ये कैसा था। कहते क्या था, खुद काम करती है, खुद झाड़ू लगाती है, मजदूर है बस। They literally laugh at us. मजदूर है। You know, when I was a med student, every single person would give me so much respect and say doctor. Over here, if you're a doctor, they don't give a shit if you're a doctor. They're like, yeah, you're a doctor, and so what? What do you want me to do about it? इनके पापा के बेस्ट फ्रेंड के बच्चे हैं, डॉक्टर फजल रहमान उसकी बेटी है, तो ब्रिटिश है, वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है। तो मैं उसको कहती हूँ रोमाना क्यों नहीं आती हो ब्रिटेन, वापस आ जाओ। इतना कहते हैं ये जो यहाँ मुझे डॉक्टर साहब कह के लोग पुकारते हैं ना, वो मैं £1,000,000 पे नहीं दूंगी। £1,000,000 पे मुझे कोई दे देना, जो यहाँ मेरी रिस्पेक्ट है, जो यहाँ पे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, वो तो मैं £1,000,000 पे भी ना दूं। तो ऐसे भी लोग हैं। Obviously, like, look at how much studying we had to do, and what are we doing? We're trying to save lives. Like, if I wasn't a doctor, I would literally respect all doctors like so much. Like my friends as well. Like
Dr. Amina. I hate calling her Amina because I'm like, Yeah. you're a doctor. She's I want a to call doctor. you Dr. Amina. ना मेरे अब्बू कहते थे नाफिया को नाफिया करके मत बुलाओ उसको डॉक्टर नाफिया को। हमने कहा मामा ये घर में तो अब हम डॉक्टर कहते नहीं, इसने 8 साल स्टडी की है, इसको डॉक्टर नाफिया को। मेरे अब्बू कहते थे ऐसे, तो मैं कहती थी नहीं And then this is the mentality, innit? People are like, don't show off. Like when they leave you in the comments, a few of them saying, why do you keep on saying doctor? Like it's like, ये why मुझे not? किसी ने कमेंट छोड़ा था कि क्यों शो ऑफ करती हो, हर वक्त कहती हो कि मेरे बच्चे डॉक्टर है, इकबाल डॉक्टर है, तो ये कंसल्टेंट है। भाई मैं तो शो ऑफ करूंगी क्योंकि मैंने नाफिया के साथ हार्ड टाइम गुजारा है। 8 साल, इवन अभी तक वो एग्जाम दे रही है। कल भी इसका एक एग्जाम था। और डॉक्टर अपने एंड करियर तक एग्जाम देते हैं। मैं तो डॉक्टर करके ना मुंह तोड़ दूंगी। Do you know what? It was so funny because I post so many stories. I post so many posts on my Instagram, and I've even had a conversation with Mama as well. That you never leave a comment or anything. She's like, it's okay, I'll do it. Continue to follow the I posted up the other day. I was in a course and it was a exam as well, and I posted up, you know, that there was a mannequin there. She quickly she sent me a heart wala emoji. I love it. My mum loves all the love medical stuff. She feels proud. क्योंकि मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। हालांकि बाद में नाफिया के पापा ने किया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज में तुम ये एग्जाम पास करो A लेवल। मैंने कहा मैं अब नहीं कर सकती हूँ, मैं 4 बच्चों के साथ क्या एग्जाम पास करूंगी। तो उसको भी पता था कि आई वाज क्रेजी टू बिकम अ डॉक्टर, क्रेजी थी। और ये मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर एक टाइम पे आके मैंने नाफिया को कहा, मैं जब 30 साल की थी तो मैंने नाफिया को कहा कि नाफिया मैं अब डॉक्टर बन सकती हूँ। नाफिया ने कहा नहीं, इस एज लिमिट होता है कि डॉक्टर बनने के लिए। मैंने कहा मैं कोई भी एग्जाम अब दे दूं, मैं कर दूं, लेकिन बस मेरी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इंग्लिश का है मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट थी पाकिस्तान में, लेकिन मेरे हमेशा इंग्लिश में पासिंग मार्क्स आते थे। तो हर चीज में मेरी फर्स्ट क्लास होती थी और इंग्लिश में मेरे पासिंग मार्क्स होते। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो इंग्लिश हमेशा से मेरा प्रॉब्लम रही है। नहीं तो मैं इधर भी डॉक्टर बन ही जाती। तो इंशाल्लाह अब हम दूसरा व्लॉग बनाएंगे कि हम लेस्टर जा रहे हैं, फिर अच्छी बातें कर लेंगे, अपने किस्से भी शेयर कर लूंगी और नाफिया को बता दूंगी इसने ट्रीटमेंट करनी है, खाने पे भी जाना है। It's consultation today, no treatment today. और दूसरी हमने ये करना है, हमने अपने जो हमारी चैरिटी का इवेंट है वहाँ भी देखने जाने हैं, आसपास से भी मिलना है। तो चले अब खुदाफिज कहते हैं। और हम अब ये थोड़ा सा स्टारबर्ग ढूंढते हैं कि हम स्टारबर्ग में, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। By the way, I gained weight over the past 1 week. I've already gained 4 pounds. Oh my God! सब लोग आप कह रहे थे ना लूज कर रही है, तो इस नमूने ने इसका जब भी एग्जाम होता है ये गेन करती है वेट। एनीवे, तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।